For doing this for us, and it's been absolutely wonderful and fantastic. And now, Seema, I know that both Binduji and Akshay will give women the right of way, always ladies first, if I know the core of who these men are. So first up, the author of the book, Seema Soni Kalinchad, to say a few words about the book. Thank you. Namaskar. Good afternoon, ladies and gentlemen. Didara, the book, is the life journey of great Mr. Dara Singh. Like Sudha just said, it tells of his childhood years spent working the fields of Punjab. It tells thereafter of his many years of struggle to earn a living and then to get into the world of wrestling. It tells of his travels to foreign shows, championships, tournaments, world tours, and finally, he is declared the champion of the world. Dara Singh was also a champion in family matters. He fell in love, and he fell in love, and he fell in love and got married to a very pretty young girl from Amritsar, his mother's choice. And they have 5 wonderful children who helped me immensely with this book, as has Mr. Ratan Olak, Daraji's brother-in-law. And Kardamanji, Daraji's firstborn. I am so grateful to all of them. I especially cherish the very precious moments, hours really, that I spent with Mrs. Surjit Dara Singh Randhawa. She took me back to Punjab. It was the village life in Punjab. And the book is rightfully dedicated to her. You know, it wasn't as if Dara Singh did not face any obstacles or hardships or, pain in his life. But he always bounced back because he was a champion in the true sense of the word. He was a winner, not only because of the hard work that he put in since childhood, but also because of the dedication that he had. It was not only that physical strength that we all know him for, it was an inner strength that he possessed. वो हिंदी में कहते हैं मेहनत के साथ भक्ति हो और बल के साथ शक्ति हो तो जीत तो होनी ही है. That was Dara Singh. Didara, the book, is like the man himself, very, very inspiring. And it's also very action-packed and very exciting. And it's so amazing and so beautiful the way this universe works. That we got the superstar, Mr. Amitabh Bachchan, to give a cover quote for the book. And then today, we have a mega star. Probably the perfect example of Daraji's ideology, his strength, and his good looks. Here to launch the book, much thanks to Bindu there. And it's a historic moment and I'm so very, very happy to be a part of it. Thank you. Thank you, Seema. And now, Bindu, in the book, when you all, please buy the book, it's outside and you can get it signed from the author. What really comes to my mind is what his father always told Bindu and other children is that it doesn't matter that you fail. It's so enough that you even tried, and I think that is something which is so quintessential to this book. And now, ladies and gentlemen, to hear some very, very, close moments that he has spent with his father, Bindu Dara Singh. नमस्कार I'd like to say कि ये बहुत ही important day है हमारी फैमिली की लाइफ में हमें बहुत हम किस्मत वाले हैं मेरे बड़े भाई परदुमन मेरे छोटे भाई अमरीक क्या है और मेरी बहनें जो यहाँ नहीं है मेरे ब्रदर इन लॉ फैमिली सारे दोस्त यहाँ हैं मेरी वाइफ मेरी बेटी बेटा यहाँ नहीं है तो एवरीबडी इज नॉट देयर वी लव यू ऑल डैड की जो बुक है एक ड्रीम थी हमारी कि डैड की बुक आए और जो इंस्पिरेशन ये जनरेशंस को दे रही है फ्रॉम द ओल्ड पीपल एवरीबडी नोज है बट आई थिंक जो यंग बच्चे हैं 16 साल 15 साल इफ यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर आप अचीव करना चाहो कोशिश करो
तो कुछ भी कर सकते हो. And I want to just thank Akshay. जैसे मैंने एक बार कहा, please, I want you to inaugurate my book, and he was so magnificent. He said, "Look, why do you want me to come here and be here?" And मैंने बोला भाई सीधी सी बात है कि there is only one खिलाड़ी of Bollywood, international खिलाड़ी number one, and this is the खिलाड़ी of wrestling, and it would be wonderful if you want. Thank you, brother. And now, ladies and gentlemen, Akshay Kumar, who would like to say a few words, share some of his memories with the great Tara Singh. Akshay Kumar, here he is. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुमार। ये मैं हूँ, आप लोगों को बता दूँ कि मैं हूँ कहीं कुलाबा में तारा सिंह साहब वहाँ आए हुए थे कोई इनॉग्रेशन करने के लिए। तो मेरे पिताजी भी रेसलर थे एंड वो भी लंबे चौड़े थे एंड कैसे ना कैसे वहाँ हमें 3 टिकटें मिली, मैं और मेरी सिस्टर और मेरे फादर। ये मतलब ये दिन मैं अभी भी बता सकता हूँ कि ऐसा लगता है जैसे कि कुछ 4-5 दिन पहले की बात है ये, क्योंकि ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है इस पर एक शब्द लिखा था किल रॉय। उस वक्त एक टी शर्ट हुआ, मतलब कंपनी का नाम था किल रॉय, अब वो कंपनी बंद हो गई है। So I still remember this photograph as if it was clicked about 5 days back only. I'll tell you one small story जो हमें मालूम है तारा सिंह जी के बारे में, शायद इस किताब में ना हो। तारा सिंह साहब की एक मिथ थी, लेकिन बचपन में जब हमें ये नहीं पता था कि ये मिथ है, हमें लगा कि ये असली में। हमें ये पता था कि तारा सिंह जी के पीठ पे त्रिशूल है। ये कमाल की बात है, तो हम यही सोचते थे कि इनकी पीठ पे कोई त्रिशूल है और अगर इनको गुस्सा आएगा तो तारा सिंह साहब की तीसरी आंख है वो खुल जाएगी। ये मैं भगवान कसम कह रहा हूँ कि मुझे यही मालूम था कि इनकी तीसरी आंख भी है, कि इनको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये लड़ते वक्त कोई 3-4 राउंड हार जाए तो 14 राउंड पे अपनी आंख खोल के तो उसको पीट देंगे। तो हमें तो यही पता था, हम तो यही जानते हैं कि अगर शक्ति की बात हो तो यही मालूम है कि तारा सिंह जी का नाम ही दिया जाएगा। शक्ति मतलब तारा सिंह जी। यहाँ तक कि ये नाम इस इंडस्ट्री के अंदर अमूमन तौर पे ऐसे भी लिया था, ओ क्या अपने आप को तारा सिंह समझता है क्या भाई? तो मतलब अपने आप को पहलवान समझता है। सो आई हैव, मैंने बचपन में वो स्टेडियम था वल्लभ भाई, तो वहाँ मैंने कितने 2-4 मैचेस भी देखे हैं उनके। वहाँ जाके बैठ के देखा करते थे कि कैसे उछल के मारते हैं। सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट अगर मुझे ये मौका मिला कि उसकी बुक आके अनवील करूँ। एंड साथ में आज बगर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इनके बारे में बताऊंगा कि मैंने अपनी फर्स्ट फाइट, फिल्म इंडस्ट्री की जो फर्स्ट फाइट है, वो बगर साहब मेरे यहाँ मेरे फाइट मास्टर रह चुके हैं, जिन्होंने मुझे काफ़ी कुछ फाइट के बारे में सिखाया। और पहला पंच मेरे मुंह पे जिसने मारा था वो गुरबचन साहब भी वहीं बैठे हुए हैं।
मेरा एक सवाल है अक्षय जी से, बाकी लोग भी पूछें, लेकिन अक्षय, आई वांटेड टू आस्क यू वन थिंग, दैट द वे इन दैट पिक्चर you're standing next to Dara ji and you are a fanboy. Do you have these days such small children come in and asking you about how to build body, how to be healthy? Sorry, yeah, go ahead. I was asking that you were standing next to Dara ji. आजकल के दिन में आपके पास इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं कि आप बॉडी कैसे बनाते हो, हमें बताओ, give us some tips. We want to be, because see, you have always insisted on being healthy. You sleep early, you get up early, we all know you're a healthy guy. Do you have such queries from, let's say, Yeah, teenagers? the children do come. Today morning I was shooting with the child. I was shooting for an ad, and there's this child who was an artist, and he was asking me about it, how to eat healthy food. On the contrary, उसकी माँ भी थी. अक्षय जी बताइए ना ये देखिए, ये कोई फ्रूट नहीं खाता, इसे समझाइए. देखो बेटा, अगर आपको अक्षय बनना है तो आपको फ्रूट खाना पड़ेगा, वेजिटेबल खाना पड़ेगा. तो yes, so I have these kind of moments coming sometime. But मैं वहाँ डरा हुआ था. अगर वो फोटो वापस आएगी तो आप देखोगे उनका हाथ मेरे पे था, मैं डरा हुआ था कहीं मुझे मार ना दे. जैसे मैंने कहा कि I had this thing about इनकी तीसरी आँख खुल ना जाए, so something like that was there in my head. Bindu, I wanted to ask you, in the book you say that you were teased in school, right, when you were going? Absolutely. सब छेड़ते थे इनको, और इन्होंने जाके अपने पापा से जब कहा तो उन्होंने कहा कि तुम बॉडी बना लो और स्कूल के वेकेशंस जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद जाना, मैं देखता हूँ कौन तुम पे हंसता है. So it was basically that if you look good and healthy, everyone is going to take seriously. You want to say a few words about that? No, I was the weakest boy in class till the 8th standard, and my father, I would tell him कि it's a curse कि मैं आपके घर में पैदा हुआ, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते. दारा सिंह का बेटा, मुझे रोना आता है. बोला रुक जा, लंबा हो जा और तब तेरी एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा. तो 8th स्टैंडर्ड से मैं स्टार्ट हुआ और बॉडी बनाई. ये ऐसे जैसे ये अक्षय कर रहा है, अभी इसका बेटा कर रहा है, जो स्टंट्स और सब वैसे हम लोगों ने भी बहुत किए. तो जब डैड अच्छे होते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तरह सेहत के बारे में सिखाते हैं, तो बच्चे भी खतरनाक दिखते हैं. वो भी बहुत बड़ा खिलाड़ी निकलेगा, 100% आ रहा हूँ. God bless. Seema, the warmth that you always spoke about and your dedication is for Mrs. Dara Singh. You want to say a few words about the warmth that you got from the woman who actually carried his legacy forward, his mother? Mrs. Surjit Dara Singh Randhawa, Surjit aunty. I met her last year in March. And from the moment that I met her, she first gave me a big hug. And after that it was just lots of cups of tea, lots of stories. And she herself was a story writer. I mean, she has one book somewhere in Punjabi, she's written her whole village life. And she took me back to the village in Punjab. She was in Amritsar. And how she met Daraji the first time, and her chachi used to tell her that, wrestler hai, unse shaadi karo. So she said, मुझे नहीं करनी कोई wrestler से शादी. And then he said, चाची said कि तू बहुत बड़े हैं, प्लेन पे चढ़ेगी, ऐश करेगी. So she replied to her, आप करो और आप प्लेन पे चढ़ो, आप ऐश करो, मुझे छोड़ दो. But she was such a beautiful and such a strong woman. She completed the book with me, and unfortunately, March this year, she passed away. I miss her tremendously, and I wish she'd been here today. Thank you so much. Mrs. Bindu Dara Singh wanted a question, to ask her husband about dad, she said so. Yes, because we all want to hear your memory about your father. So I want to ask you a question. If your father punished you ever, you or no, and how? I think I've mentioned it in the book, huh? Yes. Have we? The We have. cupboard. So now, honey, you'll also have to read the book. I'm taking one book for home for you. I was a little naughty boy. I would not listen. जब आप अपने dad की बात नहीं सुनते, I think वो भी बहुत गलत है. So he gave me ample warnings, and one day, only once in my life, ये जो त्रिशूल की बात कर रहा है, तीसरी आंख मेरे पीठ पे लगी, तो यहाँ एक त्रिशूल बना था एक बार. So you'll be reading that in the book, honey. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने रियलाइज किया होगा कि ये प्रश्न क्यों पूछा गया है. Because if he does something wrong, she has to punish him the same way. Considering Punjabi में कुछ भी they हो never जाए, punish little कुछ भी हो जाए, girls, बीवी की तीसरी आंख मत खुलवाना. नहीं. Thank you so much. And if there is just, I can take maybe one question because we are running out of time. Yeah, the little girl. Yeah, Jyoti.
So it's a thing that to be a Dara Singh, it's a very wrestler kind of a body. I would like to, I have to change my body for that. I have to put on a lot of, I would say, I have to expand a lot more on the chest side. And because he was a huge man, and I have to justify him completely. And for that, I require at least about 2 years of training to put on that kind of a bulk and look like a wrestler. So if I don't have much movies, and if I have to put on, and if Bindu requests me quite a lot, maybe, I don't know. कर दे Don't worry, there's only one Akshay Kumar, and एक ना एक दिन इसे घर पे जाके धरना करेंगे और ये फिल्म बनेगी. I don't want to tell you. I don't want to ask you a question, but I want to tell you that I'm the author's niece. Oh, very lovely. So lovely to meet you, young lady. Thank you so much for being here. And for the rest of you, there are books outside which all of you can buy and get it signed from Seema. Thank you so much for being a wonderful Thank you. audience. Once again for Didara aka Dara Singh, a round of applause. Thank you. Have a lovely. जब ये सीमा ने, हमारा तो दिल था दारा सिंह ही टाइटल होना चाहिए, लेकिन सीमा ने बचपन से ये बुक को यानी पूरा स्टडी किया और डैड का जब नाम रखा गया था तो दीदारा उनका रियल नाम था और दारा सिंह उनका नाम, वो प्यार से दारा बुलाती थी उनकी माँ और दारा से ही वो फेमस हो गए. वैसे ही मेरा नाम वीरेंद्र रंधावा है लेकिन प्यार से सब लोग मुझे बिंदु बुलाते तो मैं बिंदु से फेमस हो गया. तो आई थिंक टाइटल में थोड़ी सी हमारे क्लैश था. मेरा जैसा सिर्फ दारा सिंह होना चाहिए पर उन्होंने कहा नहीं, दी दारा द आका दारा सिंह में ठीक, तेरी मर्जी है, तू राइटर है, तू कर ले. आई फील वेरी गुड. यू सी ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वेरी लवली पर्सन. और मतलब यानी जब मैं उसको कुछ बोलता हूँ कि कुछ भी कुछ पूछता हूँ तो वो हमेशा सुनता है हमारी बात. हम लोग मधुमती क्लास से साथ में एक्टर बनने से पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं और मुझे लगता है उसने बहुत कमाल किया है. जैसा वो लॉन्च करेगा बुक को ऐसा कोई और कर नहीं सकता. वो इतने मज़ेदार आदमी है और मुझे लगता है जब दारा सिंह जी की फिल्म बनेगी तो वही हीरो होने चाहिए. कोई एक बात आप शेयर करना चाहेंगे दारा सिंह साहब? हाँ, इतना लोगों को इंस्पायर कर सके. दारा सिंह साहब की बहुत बातें हैं. यानी वो मतलब ऐसे आदमी थे कि आप बिलीव नहीं कर सकते. कोई बोल नहीं सकता कि वो स्टार है या कोई पहलवान बहुत बड़े हैं या चैम्पियन है. वो हमेशा ज़मीन से जुड़े थे. और अक्षय भी हमें एक चीज़ हमेशा जब भी मिलता है, मैं बिग बॉस जीत के बाहर निकला तो उसने एक ही चीज़ बोली, बिंदु सुंडी ज़मीन पे रहना. तो वो डैड ऐसे नहीं बोलते थे ज़मीन पे रहना, लेकिन ज़मीन पे ही रहते थे. तो ये दोनों में एक सिमिलैरिटी है मुझे लगता है बहुत कमाल की. और हम भी हमेशा ज़मीन पे रहने वाले आदमी हैं, ज़मीन पे रहेंगे. और कभी भी आपको याद रखना, अहंकार जो है वो बहुत रॉन्ग चीज़ है. हमारे डैड की एक पोएम है, वो भी हम पिक्चर में डालेंगे. बहुत कमाल की पोएम है, आजकल के लिए एकदम राइट पड़ती है. तो पिक्चर अगले साल ज़रूर स्टार्ट होगी. आपको समझ पड़ेगा हमारे डैड जो हैं उनने इतना किया, सबके लिए किया, हमारे लिए किया, फैमिलीज़ के लिए किया. और जब उनके लिए हम लोग कुछ करते हैं तो बहुत खुशी होती है.
उनके लिए जितना करे उतना कम है, लेकिन जैसे अब ये पोस्टर मैं घर ही लेके जाऊंगा, तो आई थिंक इट्स हमारे किस्मत अच्छी है जो उनके घर में पैदा हुआ। अच्छा, अक्षय सर ने इच्छा जताई है कि दारा सिंह साहब पर एक बायोपिक बने। आप बायोपिक तो जी बन गई है। मारूफ मिर्ज़ा यहाँ आए हैं, मारूफ मिर्ज़ा इधर आइए। कैसी इतनी फैबुलस स्टोरी लिखी है इनने, ये अफजल है, इनने पूरी डन की है। डायरेक्शन प्रोडक्शन कौन करने वाला है, यानी वो तो फिक्स हो गया है। अब हीरो जो है वो अभी स्टेज पे जाके निकले हैं। अगर बिंदु मेरे पीछे पड़ेगा, मैं इसके घर पे चिंबड़ जाऊंगा, जो बीच से जंप मार के अंदर जाऊंगा। टीना माँ मुझे चाय पिलाएगी सुबह और इसके घर पे रहेंगे पूरा जब तक ये साइन नहीं करता। इसको इतनी बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है अक्षय कुमार कोई भी चीज़ में जान डाल देते हैं, जो भी रोल करते हैं। अभी आप देखोगे बेबी या कोई भी पिक्चर उनकी देखोगे एयरलिफ्ट, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आप ब्रदर्स में जितनी बॉडी बनाई उतनी बॉडी चलेगी। दारा सिंह का रोल जब वो करेंगे और जब वो बात करेंगे तो ऐसे लगेगा डैड की हम्बल आवाज़ उसके मुंह से निकल रही है। मुझे लगता है ही इज़ परफेक्ट। लगा दो। बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि उसने फोटोग्राफ किया था उस जमाने में, कभी डेस्टिनी है। थैंक यू सो मच। जानना चाहेंगे कि क्या इंस्पायर किया दारा सिंह साहब की शख्सियत ने, जिसकी वजह से आपने किताब। दारा सिंह तो नाम ही आपको पता है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतनी उसमें ताकत है। और अदर देन द फैक्ट कि उनकी इतनी बड़ी इमेज थी, इतने बड़े रेसलर थे और मूवीज़ में, स्टंट मूवीज़ में बहुत बड़ा नाम था और बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं 2 साल पहले पंजाब गई थी और पंजाब काफ़ी बार जा चुकी हूँ, लेकिन जब इस बार गई थी तो उनका नाम पता नहीं क्यों घड़ी घड़ी मेरे सामने आता जा रहा था। और वो पंजाब की जो मिट्टी है उसमें से मुझे प्रेरणा मिली कि ये तो मुझे लगा कि एक तो दारा सिंह का नाम मेरे सामने घड़ी घड़ी आ रहा है। वो लोग कहते थे ये 10 मिनट की दूरी पे दारा सिंह का गांव है धर्मोचक। दारा सिंह की हम कुश्ती देखने जाते थे शाम को जब वो यंग थे, तो ये घड़ी घड़ी मेरे सामने आ रहा था और मुझे लगा ये कोई हिंट है कहीं से, और मैंने एक स्टोरी शुरू कर दी। नींव कहानी की ये थी कि मिट्टी से जन्मा हुआ एक इंसान है दारा सिंह, और इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत, और जब वो आगे भी बढ़े और इतने बड़े हो गए, वर्ल्ड चैम्पियन, रुस्तमे हिंद, फिल्मों में उनका स्टंट फिल्म्स थी लेकिन एकदम सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर्स थी, तभी भी वो अपने देश की धरती को नहीं भूले। उनका यही था कि मुझे ग्राउंडेड रहना है। ग्राउंडेड अभी कैसे कहते हैं हिंदी में, कि मतलब ऊपर उड़ूंगा लेकिन ज़मीन पे मेरे पैर ज़मीन पे ही रहेंगे। और उनका एक स्माइल था हमेशा उनके मुंह पे। इनफैक्ट जब वो गुज़र गए, उनकी वाइफ ने, मिसेस सुरजीत कौर रंधावा ने बताया, सुरजीत दारा सिंह रंधावा ने बताया कि उनके मुंह पे, फेस पे तभी भी एक स्माइल थी जब वो गुज़र गए। तो ही वॉज अ चैम्पियन। जैसे मैंने कहा पहले भी कि वो विनर तो थे हमेशा, ना कि सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से, पर उनकी वो एक भक्ति थी, और ना ही उनके बल की वजह से, लेकिन उनकी शक्ति भी थी एक उनमें। वो दारा सिंह थे। अंदर से आपने कितना महसूस किया कि मैं कितना बदल चुकी हूँ उनके जो भी एक अच्छाई जो एक इंसान में है, वो मुझे लगा इतना आसान है कि अच्छा होना, एक अच्छा इंसान होना, सबसे प्यार से बात करना और कभी गलत शब्द नहीं यूज़ करना, वो मुझे एक प्रेरणा मिली। और उसके ऊपर खाने पीने की जो उनका डिसिप्लिन और उनका डाइट था, राइटिंग इज़ वेरी फैटनिंग। मैंने बुक लिखने के बाद 6-7 किलो लूज़ कर लिया, क्योंकि मैं उनकी डाइट बहुत अच्छी थी, उनका डिसिप्लिन बहुत था। वो योगा भी करते थे, वो दंड भी करते, एक्सरसाइज भी करते थे, और ही वॉज फिट टिल द एंड फिजिकली। थैंक यू। दे सेड, अभी मुझे उनकी एक्ट्रेसेस जो थी वो नॉर्मली वो निशी जी, हेलन जी, मीना राय जी और फिर मुमताज़ जी, जिन्होंने 16 फिल्में की उनके साथ, तो उनकी कोई ऐसे फेवरेट तो नहीं थी, लेकिन पंजाबी फिल्मों में जो काम करती थी निशी,
उनके साथ बहुत सारी फिल्में की हैं उन्होंने। आई थिंक रेसलर, मेरी जो समझ है उनकी कहानी लिखने के बाद, ही वॉज अ रेसलर, लेकिन रेसलिंग में उन्होंने देखा था कि गामा पहलवान थे, वो उन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा, तो एंड में उनके पास ना तो शरीर रहा, ना काम रहा, ना पैसे रहे, और बीमार हो गए। तो इसीलिए दारा जी ने सोचा कि मैं इस नौबत तक पहुंचने से पहले, एक दूसरा भी उनको ऑफर्स आ रहे थे, रेसलिंग इन फिल्म्स, और किंग कॉन्ग एंड आंधी और तूफान, तो देन ही वेंट टू, बट ही लव्ड रेसलिंग द मोस्ट। क्या आप चाहेंगी, जैसा कि अभी बात हुई कि उनके जीवन पर एक फिल्म बने? ज़रूर, घी शक्कर आपके मुंह में बुक की अगर बुक दीदारा जो है उस पर कोई फिल्म बनाना चाहे तो ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और वी कैन। अक्षय कुमार इज़ परफेक्ट, लेकिन जैसे उन्होंने कहा, उनको दारा जी भी पहले जब रेसलिंग में जा ही रहे थे, वो बहुत ही फिट थे लेकिन बहुत ही पतले थे, जैसे अक्षय कुमार है। तो उनको भी अगर वो पूरी जर्नी ले लें और फिट हो जाए धीरे धीरे, जैसे दारा सिंह हो गए थे कुश्ती के लिए, वो जो बल्क चाहिए पहलवान जैसे, तो व्हाई नॉट, ही इज़ द बेस्ट एक्चुअली। यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू।